Hi everyone, this is me Anmol, and इस वीडियो में I'll be discussing about the Euler tour. And if you are new to this channel, then subscribe the channel and hit the bell icon so that you get notified every time whenever I put out the new content. And like this question was asked by me on my Telegram group, so I am just making a tutorial out of it. So yeah, do watch the video. So basically, Euler tour is helpful in those problems. So let me first draw the tree. So let's say in this tree you got some query. There are like some queries. These are the node values. Like for this node is having the value of 2, this node is having the value of 3. So now you have to tell in the subtree of this node 2, in the subtree of this node 2, what is the minimum node value? That would be 2 only. Minimum node value in subtree of node 2. What would be the maximum in this subtree? So it would be 5. So minimum, maximum, or let's say you have to find the sum of this of a particular subtree of a node, then also like this Euler tour is very helpful in those scenarios. So let's say now you have to find out the sum of a particular subtree. Let's say you have to find this sum of this subtree. So in these scenarios, like in these type of queries, this Euler tour is very much helpful, and we use this technique to solve this problem out. Like there is one more technique which is high level decomposition, but it's slightly complex, and we mostly tend to solve these kind of problems with Euler tour. And in case we are not able to solve that problem out with the help of the Euler tour, we move towards the high level decomposition, which I will be discussing in the next video. So what is Euler tour? So this was our tree initially. So let's say if I do a particular DFS, तो DFS अगर मैं करता हूँ इस वाले ट्री पर, so what would be the order of my DFS? So order of my DFS would be like I'll start from 1, then I'll move to 2, then I'll move to 4, then I'll return from it from here, right? Then I'll return, and the 4 का मेरा part पूरा complete हो गया, right? 4 is of no use now because it's not having any neighbors, and I won't be moving further down. um, this is not let me clear the mess out first. Okay. So this was our initial tree which I took as an example. So what would be the DFS if I do on this tree? It would be like I'll start from 1, then I'll move to 2, then I'll move to 4, then I'll return from here, and I won't be proceeding further down in from the node 4 because like node 4 is not having any neighbor. So I'll return from here, then I'll explore 5, I'll return, then I'll return from 2, then move to 3, and you know the drill, right? We all know about the DFS, it's very easy. So now let me write the DFS order traversal for this tree. So I'll move from 1, then I'll move to 2, then I'll move for 4, then I'll store like once the like I'll also store when a particular node ends. So I'll enter from this node at, let's say, timer was equal to 1. So whenever I leave a particular node, I increase my timer. So जब मैं यहाँ पर, and I'll maintain this start and the end array, start and end array, right? इसमें मैं स्टोर करूँगा कि मैं वन वाले नोड पर, जो जैसे वन नोड था तो उस पर मैं कब मेरी एंट्री हुई और कब मेरी एग्जिट हुई, वो भी मैं बताता हूँ मैं वो क्यों स्टोर कर रहा हूँ. सो लेट्स से आई स्टार्ट फ्रॉम रूट. सो ये मेरी एरे है एंड आई एम नंबरिंग इट फ्रॉम 1 ड्यू टू दी ऑब्वियस रीजंस. सो अब मैंने टाइमर 1 से स्टार्ट किया. सो आई एम एंटरिंग दिस नोड 1 एट द टाइमर वैल्यू ऑफ 1, right? And I'll also maintain this vector of order of the DFS I am doing on this tree. So पहले मैं वेक्टर में 1 ऐड किया, फिर मैंने 2 ऐड किया. सो 2 पे मेरी टाइमर को मैं बढ़ा दूंगा, मैं टाइमर को 1 से 2 कर दूंगा बिकॉज आई हैव लेफ्ट दिस नोड आउट. ठीक है. सो 2
2 पर मैं 2 पर एंट्री किया, अब मैं 4 पर गया 3 पर, राइट, एंड देन आई एग्जिट फ्रॉम दिस नोड। सो मैं एंड पे क्या इंसर्ट करूँगा 4 एंड 4 4 आई विल इंसर्ट इट 2 टाइम्स एंड देन क्योंकि अब ये 2 वाला मेरा काम हो गया, देन आई विल मूव बैक एंड देन आई विल मूव टुवर्ड्स 5। सो आई विल पुश 5 in my vector and then I'll again return, so I'll push 5 again। अब मैं टाइमर की मेरी वैल्यू क्या हो जाएंगी, मेरी टाइमर की वैल्यू हो जाएंगी 5 and 6, राइट, एंड देन I'll move again back। सो अब 2 के लिए जो मेरा एंड था वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 5 6 से मैं x से एग्जिट हुआ था, फिर मैंने एक और बढ़ाया तो मैं 7 पे पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। अब I'll exit from 2 also, then I'll exit then I'll move towards 3, ठीक है, क्योंकि अभी 1 का काम नहीं हुआ है तो मैं 1 के लिए एंडिंग नहीं करूँगा अभी। तो अब मैं यहाँ पर 3 पर आऊँगा 8 पर और मैं 3 को पुश कर दूँगा। 2 से एग्जिट किया था तो 2 को मैंने वेक्टर में पुश कर दिया, 3 को मैंने एंट्री दे दी, इसके बाद मैंने 6 को एंट्री दूंगा, देन आई विल मूव बैक फ्रॉम 6, देन आई विल मूव टुवर्ड्स 7, आई विल मूव बैक फ्रॉम 7, आई विल मूव बैक फ्रॉम 3 एंड देन मेरा 1 भी फिनिश हो जाएगा। सो ये तो मेरा वेक्टर हो गया। अब एंड वाली और स्टार्ट वाली फिल कर लेते हैं। सो एंड के लिए क्या होगा, जब मेरा 2 7 पे एग्जिट हो गया तब मैं 3 पर 8 पर आऊँगा, अब मैं 3 के बाद 6 पर जाऊँगा तो 6 पे जाऊँगा मैं 9 पर एंड देन आई विल एग्जिट फ्रॉम 6, तो 6 से एग्जिट करूँगा मैं 10 पर, 7 पर मैं जाऊँगा 11 पे, फिर 7 से एग्जिट करूँगा 12 पे एंड देन आई विल मूव एंड देन आई विल एग्जिट फ्रॉम 3 से मैं एग्जिट करूँगा 13 पे एंड देन मैं 1 पर चले आऊँगा 14 पर। तो ये मेरा स्टार्ट हो गया, ये मेरा एंड हो गया। ये स्टार्ट और एंड मेरे को क्या बता रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं कि जो मेरा 1 वाला नोड है वो 1 पोजीशन पर है और एक 14 पोजीशन पे है, लास्ट प्रेजेंस उसकी 14 पे है। ऐसी 3 वाले नोड की मेरी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, 8th नोड, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एंड कहाँ पर हो रहा है, वो 13 पे हो रहा है। तो इससे मेरे को ये पता चल जाएगा, इससे मेरे को क्या पता चलेगा, अगर मेरे को ये पता करना है कि इस 3 वाले नोड के सब ट्री नोड्स कौन कौन से हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 के स्टार्ट से 3 के एंड पर देख लूँगा कि कौन कौन से नोड्स आ रहे हैं। तो 6 6 7 7, सो दीज आर दी नोड्स। और ये 2 बार रिपीट होंगे, क्योंकि क्या होता है डीएफएस में कि हम सारे नोड्स ट्रैवल करके आते हैं, राइट। तो मैंने पुश भी किया होगा, उनको निकाल भी दिया होगा, मैंने एंट्री भी की होगी, एग्जिट भी की होगी, तो वो 2 बार स्टोर हो जाएंगे। तो इसलिए 6 6 7 7, तो इसका मतलब 6 और 7 ही मेरे 2 नोट्स थे। ऐसे अब तुम फर्स्ट के लिए चेक कर सकते हो, तो फर्स्ट के लिए सारे नोट्स आ जाएंगे, ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो 2 3 4 5 6 7, सो ये सारे नोट्स आ जाएंगे। ऐसे 2 के लिए मेरे पास क्या आ जाएंगे, 2 के लिए मेरे पास 4 4 5 5, सो 4 and 5 वुड बी माई नोट्स, ठीक है। तो अब अगर ये चीज़ समझ आ गई तो अब मैं इस चीज़ से क्या कर सकता हूँ कि अगर मेरे को ये निकालना है कि 2 से लेके 2 वाले नोड के सब ट्री का सम बता दो, जो कि क्या होगा 4 + 5 + 2, राइट। अगर मेरे को ये बताना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर एक क्वेरी कर लूँगा सेगमेंट ट्री की, राइट। सो अब 2 के लिए ये 2 पोजीशन पर है और 3 4 5 6 7 पोजीशन पर है। अब मैं इस वाले सेगमेंट ट्री का सम निकाल लूँगा, वो मेरे को लॉग एन में आ जाएगा। तो ये मैं लॉग एन में ये क्वेरी आंसर कर दूंगा, जो कि पहले मेरी अगर मैं नेव तरीके से करता तो वो ऑर्डर ऑफ एन में होती, और एन की हो जाती, क्वेरीज हमारी 10⁴ होती, एन हमारा 10⁶ या कुछ भी होता है वो एक्सीड कर जाता है 10⁸ ऑपरेशन से। सो नाउ वी वुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आउट इन एन लॉग एन। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी, और अगर तुम्हें सेगमेंट ट्री में डाउट है सो यू कुड कमेंट इट आउट इन दी वीडियो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, and I had also covered the segment tree question in my ShareChat online assessment video. So वहाँ पर मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, like it was the implementation of the segment tree in that question. So वहाँ से भी काफ़ी क्लैरिटी आएगी, like if you know about segment tree then check out that question out. और वो ऑनलाइन असेसमेंट में पूछा गया था, सो ऑनलाइन असेसमेंट के क्वेश्चन जनरली थोड़े से हार्ड लेवल के होते हैं, सो यू कुड ट्राई दैट आउट, एंड लाइक if you face any problem then you could join my telegram group out, or you could comment in the video out, I'll answer that. सो अब ये जैसे ये वाला तो सम वाली चीज़ हो गई कि सम निकाल लिया। अब इसमें भी तुम्हारा डाउट आएगा कि ठीक है मैं 2 बार नोट्स को स्टोर कर रहा हूँ तो उससे मेरी स्पेस वेस्ट हो रही है, राइट। सही बात है बिल्कुल।
सो इंस्टेड ऑफ लाइक कि मैं दो बार नोट्स को स्टोर करूँ, उससे सम वेस्टेज और ये स्टार्ट और एंड को ना करना पड़े, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नॉर्मल DFS करूँ इस पर, मैं नॉर्मल DFS करूँ 1 2 4 5 3 6 7, मैं ये कर लूँ अगर, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, और मैं अपने सब ट्री वाले साइजेस को स्टोर करके रख लूँ कि 2 के सब ट्री में कितने नोट्स हैं, 2 ही नोट्स हैं, राइट, 4 और 5। तो अगर मैं वो स्टोर कर लूँ तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग वाला तो मेरे को पता ही होगा 2, मेरे को बस एक स्टार्ट वाला स्टोर करना पड़ेगा, और मेरे को साइज स्टोर करना पड़ेगा कि सब ट्री का साइज़ क्या है, कि जैसे 2 के सब ट्री का साइज़ क्या है, ऐसी 4 के सब ट्री का साइज़ क्या है, वो 0 है, 5 के सब ट्री का साइज़ क्या है, ऐसी 3 के सब ट्री का साइज़ क्या है। अब जैसे 3 का मेरे को स्टार्ट पता है, लेट से स्टार्ट इज 4, सब ट्री का साइज है लेट से 2, सो मेरे को ये पता चल जाएगा कि ये 4 से लेके 6 वाले नोट्स के बीच में होंगे इसके सारे नोट्स जो इसके सब ट्री में आ रहे हैं। तो वो भी एक तरीका होता है कंप्यूटेशन का, और वो उससे हमारा ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये दो बार स्टोर नहीं करने पड़ेंगे ऐसे नोट्स, और क्या कहते हैं, ये एंड वाली चीज़ को तो तुम उससे रिप्लेस कर लो कि जो तुम्हें सब ट्री का साइज स्टोर करना पड़ता है, बस ये फ़ायदा हो जाएगा कि दो बार नोट्स स्टोर नहीं करने पड़ेंगे। So this would be one way of using this Euler tool. There are several other ways also जो कि हम प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करेंगे कि ये मिनिमम मैक्सिमम वाली चीज़ भी तुम कर सकते हो यहाँ पर, बट लाइक हम प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करेंगे तो और बेटर क्लैरिटी आएगी। सो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी यही थी कि हमें सब ट्री के नोड का सम बताना था कि एक पर्टिकुलर नोड एक्स है, उसमें क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास इस तरीके की, ये हमने नोड एस को एक्स कर दिया है और हमें ये सम बताना है कि सब ट्री ऑफ नोड एस में का सम क्या होगा, हमें ये बताना है प्रॉब्लम में। सो मैं प्रॉब्लम ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मुझे प्रॉब्लम भी याद हो गई है बनाते बनाते। तुम्हारे पास क्वेरीज हैं 2 3 1 5 3 एंड 2 3, ये तुम्हारी क्वेरीज हैं। क्वेरीज दो तरीके की हैं, एक तो 2 और एक 1, ठीक है। तो 1 वाली क्वेरी का मतलब ये है कि तुमने एस वाले नोड को 5 वाले नोड को तुमने वैल्यू कर दी उसकी 3, ठीक है, ये एक क्वेरी। तो पहले और और 2 वाले का हमें ये बताना है कि 2 वाली क्वेरी में ये बताना है कि 3 वाला जो नोड है उसके सब ट्री का सम क्या है। सो आई गेस वो ये बताना है ना। ओ, आई जस्ट मिस इंटरप्रेटेड। उसमें हमारे पास वैल्यूज़ भी दे रखी हैं कि हर नोड की वैल्यू क्या है, हर नोड की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट वाले नोड की वैल्यू है 4, सेकंड वाले नोड की वैल्यू है 2, थर्ड वाले नोड की वैल्यू है 5, फोर्थ वाले की सेकंड, और 5 वाले की 1। तो अब जैसा मुझे ये बताना है कि थर्ड नोड के सब ट्री में, थर्ड नोड के सब ट्री में, सो थर्ड नोड के सब ट्री में कौन कौन से नोड है, एक तो 3 खुद है, एक 4 एक 5 है, राइट। 3 वाले नोड का सम क्या है, 5, 3 वाले नोड की वैल्यू क्या है 5, 4 वाले की 2 प्लस 1, तो ये 8 आ गया। सिमिलरली हमें ये बताना है कि अब मैंने क्या कर रहा हूँ कि 5 वाले नोड की वैल्यू को मैंने 3 कर दिया, तो 3 4, ये 1 थी पहले इनिशियली, अब मैंने इसको कर दिया 3, ठीक है। अब फिर मैंने दोबारा क्वेरी करी है, तो दोबारा क्वेरी मैंने करी तो दोबारा नया वाला क्या आएगा, 5 + 2 + 3, तो 11 आ जाएगा। तो ये इस तरीके की कुछ क्वेरी आंसर करनी है। तो इसके लिए हमारा बेसिकली यूज़ होगा, एक तो हमारा यूलर टूल जो मैंने ऊपर बताया है, सेम ही टेक्निक यूज़ होगी, बिल्कुल सेम ही प्रॉब्लम डिस्कस करी थी मैंने ऑलमोस्ट, एंड उसके साथ हमें सेगमेंटरी यूज़ करना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग आउट दी सम। तुम उसके साथ वो भी यूज़ कर सकते हो, बाइनरी इंडेक्स ट्री, बट मतलब देख लो, अपनी अपनी प्रेफरेंस है। क्योंकि सेगमेंटरी में लाइक 4n स्पेस लगेगी, और स्पेस ऑप्टिमाइज्ड लिखने के लिए भी झंझट रहता ही है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऐसे भी रहता है वो बनाना। सो वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, तुम्हारा मन है, बट आई विल डू इट विद सेगमेंटरी। सो वी वोंट बी कवरिंग एवरी कॉन्सेप्ट इन अ पर्टिकुलर वीडियो, तो वीडियो बहुत लंबी हो रहेगी और कोई देखेगा नहीं, जो कि वैसे भी नहीं देखता है, बट ठीक है। सो
ठीक है। सो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, सो आई विल शो यू द कोड जो कि मैंने किया है इसमें, एंड देन वी विल लुक कि समझ आता है तो नहीं आता है, तो देन आई थ्रो यू सम एग्जांपल्स जिससे और बेटर क्लैरिटी आएगी। सो फर्स्टली मैंने तो वही एडजेसेंसी ए के अंदर पुश कर दिया बी को, और बी के अंदर पुश कर दिया ए को, एंड देन मैंने ये टाइमर स्टार्ट किया जैसे मैंने पहले बताया था। सो टाइमर से मैंने डीएफएस में टाइमर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, और मैं इन वाले स्टोर कर रहा हूँ, और सब ट्री का साइज स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ताकि मेरे को वो दो बार नोट स्टोर ना करना पड़े, राइट। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने इस वाली अरे पे अपना सेगमेंट ट्री बिल्ड कर लिया है यहाँ पर। देन मैं अपनी क्वेरी कर रहा हूँ, तो अब मेरे पास क्या होगा, जैसे मैंने अब जैसे ये 2 3 वाली क्वेरी आएगी, अगर मैंने इस जैसे मैंने यही वाला एग्जांपल था मेरा, आई ड्रॉ इट अगेन फास्टर, यही था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसका अपना एक वेक्टर बनाया मैंने वी नाम का, उसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर लिया है, नोट्स का डीएफएस। सो नोट्स का डीएफएस ऐसा आ गया 1 2 4 5, सॉरी 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरे नोट्स का ऑर्डर आ गया डीएफएस का। अब मैंने स्टार्ट भी स्टोर किया है इनका, कि मैं कब कब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने इसको 1 पे स्टार्ट किया, इस पर मैं 2 पर गया, दैन इस पर मैं 3 पर गया, इस पर मैं 4 पर गया, इस पर मैं 5 पर गया। ये स्टार्ट स्टोर कर लिया। अब मैं इनके सब ट्री के साइजेस भी स्टोर कर रहा हूँ। जिसको सब ट्री के साइजेस का नहीं पता, मैंने फर्स्ट वीडियो इसी पे बनाई थी कि सब ट्री का साइज़ कैसे निकालते हैं, और वैसे भी मैं कोड से बता देता हूँ। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं सब ट्री ऑफ वी प्लस इक्वल टू 1 करते हैं हम। तो अब क्या करना है, जैसे अगर मेरे पास ये एक ट्री है, लेट्स से ये एक ट्री है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं रिकर्सिवली इसके सब ट्री मंगा लेता हूँ जितने भी हैं, जैसे 2 3 4 हैं, तो मैं हर एक के लिए कॉल कर देता हूँ, उससे मेरे पास इनके चारों के सब ट्री आ जाएंगे। अब इन चारों का सम ही तो इस सब ट्री +1 के इक्वल होगा। अगर इस वाले के जैसे नोड्स हैं, इसके भी बहुत सारे हैं, लेट्स से ये 3 रिटर्न हुआ, 4 रिटर्न हुआ, 5 रिटर्न हुआ, 6 रिटर्न हुआ, तो इसके सब ट्री में कितने नोड्स होंगे, इट वुड बी 1 + 3 + 4 + 5 + 6, राइट, यही तो होगा। तो यही मैं इस कोड में कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जैसे मेरे को वी नोड का निकालना है, तो सब ट्री v + 1 + इक्वल टू 1 तो उस नोड के लिए खुद के लिए हो गया, और उसके लिए उसके अलावा क्या होगा, जो बाकी उसके डीएफएस वाले नेबर सारे नेबर्स के लिए, जो x है ये इसके नेबर्स हैं, राइट। x इज़ नॉट इक्वल टू पेरेंट, ये ताकि वो विजिटेड वाली कंडीशन जिसको डीएफएस का आइडिया होगा उसको पता चल रहा है क्या हो रहा है। सो अब सब ट्री ऑफ वी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डीएफएस ऑफ ऑल इट्स नेबर्स के सब ट्री निकाल के ला रहा हूँ। मैं यहाँ से रिटर्न भी सब ट्री ही कर रहा हूँ, तो मैं उसके सारे नेबर्स के सब ट्री के नोट्स का सब ट्री के नोट्स निकाल के ला रहा हूँ कितने हैं। तो सब ट्री ऑफ वी के अंदर कितने नोट्स होंगे, एक तो खुद होगा वो, और उसके सारे नेबर्स के सब ट्री के नोट्स के सम होगा, यही होगा। तो यही मैंने किया है सब ट्री का साइज़ निकालने के लिए। सो अब वन के अंदर कितने नोट्स हैं, 1 के अंदर 4 नोट्स हैं, ऐसे 2 के अंदर कितने नोट्स हैं, 0, 3 के अंदर कितने नोट्स हैं, 2, 4 के अंदर कितने, 0, 5 के अंदर 0। तो इससे मेरे को पता चल गया कि 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5, क्योंकि 4 नोट्स हैं तो एक 1 खुद हो गया, तो 1 2 3 4, तो 1 से लेके 5 तक के मेरे पास वो होंगे, इसके सब ट्री में नोट्स ये हैं। इसी तरीके से अब मेरे को अगर ये निकालना है, सॉरी सब ट्री में 5 होगा, एक वो खुद भी तो है। तो 1 से लेके 5 तक ये मेरे को पता चल रहा है कि 1 से लेके 5 तक वो नोट्स हो गए सारे, जो 1 के अंदर 1 नोट के सब ट्री के नोट्स हैं। सो 1 से लेके 5 हो गया। ऐसे ही अब मेरे को 2 के वो बताने थे, तो 2 और 1, और ये ऐसे ले लो यार, 5 0 3 0 0, ठीक है। सो अब 4 के लिए मेरे पास क्या होगा, 4 के लिए मैं 4 पे स्टार्ट हुआ और 4 पे ही एंड हो गया। 0 का मतलब ये है कि उसके उसके अंदर कोई सब ट्री उसका है नहीं, ऐसी 5 के अंदर कोई सब ट्री नहीं है। सो इससे मेरे को वो एंड वाली चीज़ पता चल जाएगी कि एंड क्या होगा।
तो अब 1 के लिए एंड क्या होगा मेरे पास, 1 के लिए एंड होगा स्टार्ट प्लस सब ट्री ऑफ 1 जो भी है -1, और इनके सब ट्री में भी 1 होगा ये, क्योंकि वो खुद भी तो एक है, खुद उनका एक का कंट्रीब्यूशन तो आएगा ही, चाहे भले ही उसके नेबर्स ना हो, 2 का कोई नेबर नहीं है उसकी वजह से उसके नोट्स नहीं बढ़ते, बट वो एक खुद भी तो एक सब ट्री का पार्ट है ही। सो इसलिए ये हमारे पास ये एंड बता देगा। तो अब 1 से लेके 5 तक के सारे नोट्स 1 के सब ट्री में होंगे। तो अब मेरे को, अब मेरी वो वाली क्वेरी जो मेरे को बतानी है कि अगर जैसे मेरे को बताना है कि 3 के अंदर, 3 के अंदर का वो क्या होगा, सम क्या होगा 3 के नोट्स के अंदर का, तो 3 से 5 तक का। सो अब मैं ये देखूंगा कि 3 का स्टार्टिंग टाइम क्या है, 3 पे स्टार्ट हो रहा है, एंड टाइम क्या होगा, एंड टाइम होगा 3 + 3 - 1। सो 3 से 5 तक की क्वेरी मैं निकाल लूँगा इस एरे में सेगमेंट ट्री की मदद से, तो वो हमारे पास सम आ जाएगा। और मैं सम के लिए ये वैल्यूज़ यूज़ करूँगा, वो भी मैं दिखा दूंगा कोड में मैंने क्या किया है। ये तो बहुत आसान है, अगर तुम्हें ये चीज़ समझ आ गई है तो ये क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा। सो 3 से 5 तक का सम आ जाएगा 8, और यहाँ पर ये क्वेरी तुम्हारी आंसर हो गई। अब ठीक है, ये क्वेरी तो आंसर हो गई, बट अब तुम्हें अपडेट करना है। जैसे तुम्हें 3 की वैल्यू अपडेट करनी थी 1 पे, तो तुम क्या करोगे उसके लिए। सो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इस नोड को अपडेट कर देना है। जो एक पर्टिकुलर एरे की वैल्यू को अपडेट कर देते वही कर देना है इस नोड के लिए, वो बाकी खुद मैनेज कर लेता है सेगमेंट ट्री, लॉग इन में अपडेशन हो जाता है ना। सो आई विल शो यू कि मैंने क्या किया है। सो देखो मैंने क्या किया है, मैंने ए ले लिया है, अगर ए मेरा 1 है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को अपडेट करना है, तो मैंने अपडेट कर दिया उसमें वैल्यू अपनी। ये मैंने किया है इन इन बी से लेके सी माइनस वैल्यू बी तक। इनिशियली जो उसकी वैल्यू थी वो मेरी वैल्यूज़ बी थी, तो अब जो मेरी नई वैल्यू होगी वो सी माइनस वैल्यूज़ बी से ही मैं अपडेट कर रहा हूँ। मैंने वो उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ अपडेट करते हुए। तुम ये भी कर सकते हो कि तुम ऐड ना करो इस वैल्यू को, डायरेक्ट इस वैल्यू को पास कर दो, वो तुम्हारा मन है, तो इसलिए मैंने सी माइनस करके किया है। टेढ़े तरीके से तुम सीधे तरीके से कर लो। और इन भी मेरे को वो टाइमर बता देगा कि कौन सी पोजीशन पर है वो मेरा एलिमेंट, उसको मैंने अपडेट कर दिया है। और वैल्यूज़ एट बी इज़ इक्वल टू सी कर दिए मैंने फर्दर रेफरेंसिंग के लिए, क्योंकि आगे चल के मेरे को सी माइनस वैल्यूज़ अब बी करनी है, तो मेरे पास नई वैल्यू तो पड़ी हो उसके लिए। और अगर मेरी क्वेरी आती है तो नॉर्मल मैंने क्वेरी करी है उस ट्री पे, वो तुम ये देख लेना यार कोड, एंड आई विल शेयर दिस कोड आउट इन दी कमेंट सेक्शन। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पूछ लेना, थोड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, और उससे भी ज़्यादा हो तो लिंक्डइन पे पूछ लेना। तो इस वीडियो में तो इस वाले सब ट्री प्रॉब्लम में तो यही था, एंड देन आई विल मूव आउट टू दिस path queries problem. So it's also the implementation of this Euler tool only. So let us understand. तो जैसा कि मैंने पहले बताया था वीडियो में कि Euler tool हमें सब ट्री के साथ साथ पाथ्स की क्वेरीज को भी आंसर करने में काम आता है। पाथ कैसे, जैसे ये ए बी सी डी ई एफ जी है, सो ए से जी तक का तुम जो भी इसके पाथ में नोट्स आ रहे हैं उसका मैक्सिमम बता दो, उसका मिनिमम बता दो, उसका सम बता दो, जीसीडी बता दो, कुछ भी बता दो भाई। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए भी हम यूलर टूर का यूज़ करते हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा होगा देखो यार, जैसे क्या होगा इसका ना एक बहुत अच्छे से एक वो चीज़ समझते हैं, क्या कहते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू विथ दिस एग्जांपल ऑन। ठीक है, तो अब जैसे क्या होगा, तुम्हें ए से ई पर जाना है जैसे, ठीक है, ए से ई पर जाना है। तो अब अगर मैंने इसका वो बनाया अपना डीएफएस वाला जो मैंने तुम्हें बताया था, तुम कहोगे यार उससे तो नहीं होगा ये, बट ये उसी से ही होगा, तुम देखो कैसे होगा। ए बी डी एफ, अब मैं ना इसमें दो दो बार स्टोर करूँगा नोट्स को, हम कंफ्यूज ही नहीं करेंगे अभी स्पेस की, क्योंकि हमें समझना है, उसके बाद हम स्पेस वगैरह की सोचेंगे। पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो, उसके बाद तो आगे की सोचेंगे। ई आई आई ई बी एंड देन
मूव टू सी। और यार अगर यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हो तो यार लाइक कर दो, शेयर तो देखेंगे शेयर का, सब्सक्राइब और कर दो, and it will give me huge motivation because like it's very tedious to like build video with the company's work and my other work also. So yeah, do hit and like the subscribe button, do hit and like the button, and do press the bell icon out, and like do share this video out with your friends, so that, and like placement season is going to start in like 40-45 days. So I'm teaching you these kind of problems क्योंकि because these are generally asked in the online assessment. तुम इंटरव्यू तो निकाल लोगे बट लाइक इट वुड बी वेरी यूजफुल लाइक इफ़ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस आउट, क्योंकि इस तरीके की जनरली प्रॉब्लम पूछी जाती हैं इंटरव्यू ऑनलाइन असिस्टेंट में. CNA. तो अब ये हो गया हमारे पास यूलर टूर, ये हमारा टूर हो गया. तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरे को ए से ई पर जाना है तो ए से ई पर जाने के लिए अगर मैं ये देखूँ कि ए से ई तक के पाथ में मेरे पास कौन कौन से नोड्स आ रहे हैं, मेरे पास ये सारे नोड्स आ रहे हैं. ठीक है, मेरे पास आ रहा है ए बी डी एफ एफ जी जी डी बी ई. और इन नोड्स में स्पेशलिटी पता है क्या है, सॉरी ये मैंने बी यहाँ गलती से इंसर्ट कर दिया. बी तो बाद में ख़त्म होगा ना, ई पर जा रहे हो तुम बी कैसे ख़त्म हो जाएगा, बी जब लौट के आओगे तभी तो ख़त्म होगा. तो इन नोड्स में स्पेशलिटी क्या है पता है क्या है, कि ये सब जो जो उसके पाथ में नहीं है वो ट्वाइस रिपीट हो रहे होंगे. तो यार तो कलर भाई, तो डी डी एफ एफ जी जी, तो ये कट गए सारे. तो इससे मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ समझ आई कि अगर मेरे को ए से ई तक के पाथ का सम चाहिए ना, तो मैं जो जो मैं जब भी एंटर करूँगा तब मैं वैल्यू, लेट से डी की मेरे पास वैल्यू 3 है, तो मैं एंट्री पे तो उसे 3 स्टोर कर दूंगा और एग्जिट पे -3 स्टोर कर दूंगा ताकि वो नलीफाई हो जाए मेरे सेगमेंट ट्री में. समझ रहे हो ना, ताकि वो चीज़ नलीफाई हो जाए. तो अब अगर जैसे मेरे को ए की मेरे पास वैल्यू होती है 1, बी की मेरे पास वैल्यू होती 2, लेट से 3 की होती 3, डी की होती 3 और एफ की होती 4. तो अब यहाँ पे मैं एफ से एग्जिट हुआ तो मैं यहाँ -4 डाल देता. जी के लिए मैं 5 -5, डी के लिए फिर से -3 और ई के लिए लेट से 6 होती है मेरे पास वैल्यू. तो अब अगर मैं इसका सम निकालता ना 1 से लेके ए से लेके ई तक का, तो मेरे पास सम में ये सब कैंसिल हो जाता, राइट. तो ये 6 + 2 + 1 बचता 9, जो कि मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता. तो अरे यार इट वॉज ऑन दिस साइड एंड आई डोंट नो लाइक माई फेस वुड बी हेयर, सो टू बेयर मी लाइक यूलर टूर तुमने देख लिया यहाँ से. सो तो मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ, तो इस वजह से ये मैं सम निकाल पा रहा हूँ इस यूलर टूर की वजह से, इस यूलर टूर की मदद से इस पाथ पर. तो बेसिकली बस इस प्रॉब्लम में इतना ही कैच था कि हमें बस 2 बार स्टोर करनी है वैल्यू, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ताकि वो चीज़ नलीफाई हो जाए अपने प्रीवियस नोड से, और जो नोड्स उस पाथ में नहीं आ रहे वो सारे कैंसिल आउट हो जाएं. वो क्यों हो रहा है ऐसा, तो तुम देख पा रहे होंगे कि जब तुम डी से रिटर्न कर लिए तो ये सारे नोड्स विजिट हो चुके हैं, तुम एंटर भी कर चुके हो एग्जिट भी कर चुके हो. तो अब अगर ये 2 बार हैं तो इसका मतलब क्या है कि तुम इस ब्रांच से पूरे एग्जिट हो चुके हो, इस ब्रांच का कोई यूज़ ही नहीं था. अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे, लाइक आई वोंट बी एक्सप्लेन यू इन दैट मच डीपनेस, क्योंकि बिकॉज इट्स वेरी इंट्यूटिव. तो तुम थोड़ा सा खुद दिमाग लगा के देखोगे तो तुम्हें समझ आएगी ये चीज़ कि वो ब्रांच जो थी वो तुम्हारी, तुमने एंट्री भी कर ली, तुमने इससे एग्जिट भी कर ली. तो अब अगर तुम्हारे पास वो तुम्हारे नलीफाई हो गई हैं वो सारी वैल्यूज़, तो इसका मतलब वो पाथ में उनकी ज़रूरत थी ही नहीं वैसे भी, इसलिए वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं. तो अब अगर ये जैसे इसी प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया है, आई विल शो दिस आउट. सो वही बिल्ड ट्री है, अपडेट ट्री का फंक्शन है, क्वेरी का है. डीएफएस में मैंने सिर्फ वही स्टोर किया है, एक तो मैंने वैल्यू स्टोर करी है, अब मैंने एक बार पॉजिटिव स्टोर करी है, ठीक है, एक बार नेगेटिव स्टोर करी है, स्टार्टिंग टाइम स्टोर किया है, एंडिंग टाइम स्टोर किया है. एंड देन तो फिर सिंपल ही है, मैंने क्या किया है, मैंने क्वेरी कर ली है अपनी 0 से लेके, क्योंकि मेरे को रूट से लेके उस नोड तक का बताना है. सो अब मेरे को 0 से लेके उस स्टार्टिंग टाइम तक का मैं वो निकाल लूँगा, अपना सम निकाल लूँगा. तो अब मैंने स्टार्टिंग टाइम तक ही क्यों लिया, मैंने एंडिंग टाइम तक क्यों नहीं लिया.
अगर मैं एंडिंग टाइम तक ले लेता तो फिर मैं पूरा घूम के आता इसी सब ट्री में, समझ रहे हो? तो मेरे को सिर्फ स्टार्टिंग टाइम तक ही लेना पड़ेगा। अब मैं एंडिंग टाइम तक ले लूँगा भाई, तो मैं इस वाले पाथ को क्यों कंसिडर करूँगा, नीचे वाले पाथ को? मैं तो पहले ही पहुँच गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? तो क्वेरी वाली चीज़ तो अपन ने सॉर्ट कर ली। अब अपने को करनी है सिर्फ अपडेशन वाली चीज़, कि हम अपडेट कैसे करेंगे एक पर्टिकुलर नोड की वैल्यू को, ठीक है? तो अब लेट से मेरे को ई वाले नोड को मेरे को चेंज करनी थी वैल्यू उसकी, लेट से एक्स। तो इसके लिए भी सिंपल है, मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग टाइम पे एक्स कर दूंगा, एंडिंग टाइम पे माइनस एक्स कर दूंगा, नई वैल्यू उसकी। यही तो करना होगा, यही पहले किया था हमने। स्टार्टिंग टाइम पे स्टार्टिंग टाइम ऑफ बी से स्टार्टिंग टाइम ऑफ बी का मतलब, अरे यार थोड़ी सी मतलब लाइक आई हैवंट रिटर्न इट इन अ वेरी गुड वे। सो स्टार्टिंग टाइम बी मतलब मैं रेंज वाली चीज़ को अपडेट कर रहा था, तो रेंज स्टार्टिंग टाइम 3 से 3 तक का, तो मतलब यही हो गया कि एक नोड को अपडेट कर दिया। तो वो तुम सिंगल नोड के लिए भी लिख सकते हो और उस रेंज के लिए भी लिख सकते हो। सो डेट आई हैव डन, तो मैंने उसको क्या कर दिया, सी से अपडेट कर दिया और माइनस सी से एंड वाले को अपडेट कर दिया। तो इससे मैंने अपडेट कर दिया ट्री को, तो अब ये सही चल जाएगा। उसके बाद क्वेरी कर लेंगे हम, तो वो सही रिजल्ट दे देगा। सो इट वाज इजी, अगर तुम्हें यूलर टूर का कॉन्सेप्ट पता है। और ये और भी बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, लाइक अगर तुम्हें ये फाइंड करना होता कि यहाँ पर कितने ऐसे नोड्स हैं जिनकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है, इस बी के सब ट्री में कितने नोड्स ऐसे हैं जिनकी जैसे बी का ये सब ट्री, मैं यहाँ पे बी का सब ट्री बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना यार, ठीक है? बी की वैल्यू थी 2 1 3 4 1 3 एंड 2। तब कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं यहाँ पे? तो अब तुम क्या करते हैं इस केस में, तुम्हारे पास अगर ये यूलर टूर एक एरे की फॉर्म में बन के आ गया है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं सेगमेंट ट्री की वजह से। तो तुम क्या करते हैं, स्टार्टिंग टाइम एंड टाइम तुम्हें पता है, तुम्हें बस क्वेरी करनी होती है सेगमेंट ट्री पे ये डिस्टिंक्ट वाले फाइंड करने की। और ये प्रॉब्लम भी CSES में है। तो इसमें डिस्टिंक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेट का यूज़ करते हैं। तब तुम सोचोगे सेट यूज़ करोगे तो एन स्क्वायर स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्यों होता है ऐसा, लाइक आई मेक अ वीडियो ऑन इट, बट अभी के लिए मैं बता देता हूँ। लाइक इट वुड बी एन लॉग एन स्पेस होती है। क्यों? क्योंकि हर लेवल पे मेरे पास, एक तो पहली चीज़, नंबर ऑफ लेवल्स वुड बी लॉग एन इन अ ट्री, राइट? और हर लेवल पे लाइक देयर कैन बी एट मोस्ट एन नोड्स। सो ये एन लॉग एन से तो ऑब्वियसली कम होगी होगी, तो उस केस में एन लॉग एन स्पेस हो जाती है। और तुम सेट की मदद से इस चीज़ को कर सकते हो। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि यूलर टूर की वजह से तुम ट्री को एक फ्लैटन कर लेते हो एक एरे की फॉर्म में, और उस पर तुम सेगमेंट्री या बाइनरी इंडेक्स ट्री यूज़ कर सकते हो। तो उससे तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्वेरी, अपडेशन और मिनिमम मैक्सिमम सब ट्री पाथ, इन सब से रिलेटेड क्वेरीज वगैरह तुम सॉर्ट कर लोगे। सो इस वीडियो में इतना ही था। एंड लाइक इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो, सो देन डू हिट द लाइक बटन, share it with your friends, and do join my Telegram group, because I used to post a single problem a day out there, and I make a tutorial, and I try to make a tutorial video on it. So yeah, thanks for watching. Bye.